यार ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का बड़ा सुनता रहता हूँ, इसके बारे में आजकल बहुत बात हो रही है। तो व्हाट्स योर व्यू ऑन इट, व्हाट इट इज? आई थिंक बहुत ज़्यादा आई फील लाइक बहुत ज़्यादा पीपल मिसअंडरस्टैंड इट और misconstrue it. They fail to understand what it means. It's basically this concept that you fail to recognize the privilege that you have in society because of the gender that you have, which is male, and you continue to use that privilege without ever accepting that you're at a position where you have access to a lot of things that other people don't have access to, simply on the basis of gender. And then constantly repeating the same behavior that is harmful to everyone else and not accepting or taking any responsibility for your actions and feeling entitled that because I'm a guy so I can do this, and knowing that society will back me irrespective of what I do. So I think that itself creates a very toxic culture and sort of like sidelines every other gender except one gender that is sort of like above everything else in society at this point. So yeah, I think people just fail to recognize that आपके पास एक privilege है because of the gender that you have, and it's not like you had a part in it. It's like even if you have this privilege from the very start, you need to accept कि हाँ होती है difference. Like there is a difference that exists. Like हमारे घरों में difference exists करता है. The way that you have access to things and your, for example, someone has a sister, they may not have the same access to a lot of things. So at least उस चीज को recognize करना, I don't think that should be that big a deal. And trying to change your behavior patterns कि आप socially दूसरे gender को harm नहीं कर रहे because of the way that you are behaving. It's not that big an ask. But people just make it like an egoistical problem. Like, you know, they take it कि बहुत कोई personal attack हो रहा है हमारे ऊपर या पूरे gender पे attack हो रहा है. It's more like recognizing कि हाँ आपके gender के पास है privilege. You know, maybe work to change that or use that privilege to do good. Because you can use the privilege to do bad, but you can also use it in a positive way. But people aren't willing to do that. It just becomes like एक कोई personal कोई लड़ाई है या हम मर्दों से कोई जंग हुई है, which is I think a lot of these things come from like other insecurities as well. Yeah, for sure, yeah. Right, like overcompensating literally, right? Yeah. What do you think? यार देखिए, मोस्टली जो मसला ये है, जो लोग इसके ऊपर बात करते हैं या आप जो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल औरत मार्च, वो सारे लोग जो उसके ऊपर वायरल कंटेंट के पीछे वहां पर थे, जिस तरह के वो सवालात कर रहे थे, मेरा नहीं ख्याल उनमें से किसी ने भी औरत मार्च का शायद इस साल का मैनिफेस्टो पढ़ा या फिर इन्होंने गुज़श्ता कई सालों के मैनिफेस्टो कभी भी पढ़े. तो सेम गोज यू नो एवरीथिंग अराउंड अस. इवन जब हम वोट डालते हैं, तुम जिसको वोट डाल रहे हैं उसका मैनिफेस्टो ही नहीं पढ़ते. तो बात तो यही रहेगी ना, आवे ही जावे जावे ही जावे. तो मेरे ख्याल से स्टार्ट एवरीथिंग बाय रिसर्च. तो जो कोई बात हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे मंतक क्या है और वो बात करनी क्यों जरूरी है, उसको समझना क्यों जरूरी है. तो मेरी छोटी सी ये राय है कि मतलब कोई भी आप चीज देखते हैं तो उसके पीछे एकदम आग भगोला ना, वैसे उसको रिसर्च करना. And you were जो इस पर औरत मार्च हुई है, did you have any thought? ये जो सारा अभी कह रहे हैं बड़े यार नहीं होनी चाहिए थी, ये नहीं हो रही है, आपको कोई तकलीफ थी या नहीं? सही है औरत मार्च पे यार तकलीफ होनी कुछ, बट हो रही है ना लोगों को. यार उन सबको हो रही है जिन्होंने मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा. अगर वो मैनिफेस्टो पढ़ लें तो शायद उनकी जो तकलीफ है थोड़ी कम हो. वो मैनिफेस्टो को जो उनसे ना शायद दवा समझ के पढ़े, शायद वो दवा वो असरअंदाज हो जाए. तो ये ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है. और औरत मार्च में ओवर द ईयर्स बहुत सीखा और इसकी जो नई कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है. मेरे ख्याल से
ज़मीन को बिल्कुल हक होना चाहिए। और अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक स्पेसिफिक दिन पे आके बयान करना चाहता हूँ, व्हाट दैट इज। तो मैं मारिब से भी बात कर रहा था औरत मार्च, बट आई नोटिस कि ना एक वो थी, व्हाट्स इट कॉल्ड, एक डिफरेंस था, याद है, लाइक देयर वर पीपल हु वर पार्ट ऑफ औरत मार्च एंड यू नो दे सीम्ड ऑब्वियसली फ्रॉम अ बैकग्राउंड व्हिच वाज यू नो प्रिविलेज्ड, और जो खिलाफ बोल रहे थे ना, जो भी वो थे, वो मुल्ला थे, वो ट्रोल थे, वो स्टूपिड सवाल भी पूछ रहे थे, बट दीज पीपल क्लियरली सीन फ्रॉम, आई वुडंट से फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, यू कुड टेल, यू नो, यू कुड टेल। और मैंने देखा था ज्यादा मसला शायद उनको औरत मार्च से नहीं है, उनको ये मसला है कि ये देखें, तो देखो एक सोच आप सोच ही चीज करते, एक सोच है, वो सोचते हैं ये आते हैं लोग जीन्स शीन्स के अंदर, उनको जीन्स से ये मतलब उनको ये कह रही, ये देखो लोग आते हैं जीन्स में, इनके मसले क्या हैं, हमें मसला है, हमें तो एक्चुअल मसला है, हमारे घर में वजन ये नहीं आ रहा, मैं पैसे कमा रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए, मैं ये कर रहा हूँ, ये लोगों को तो ये मसला नहीं है, दे डोंट गिव शिट अबाउट मैनिफेस्टो, बट फॉर देम इट सीम्स लाइक अ परफॉर्मेंस एंड इट फाइनली बॉइल्स डाउन टू कि उनको लगता है ये एक अमीरों की चीज है और ये ना अमीरों का ये मसला है, नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान में ज्यादा औरतें हैं, बहुत ऐसे सारे मसले जो आई थिंक औरत मार्च नहीं कवर करता। And that's the other thing. I also think if somebody is being critical of Aurat March, it might be controversial to say, but I think anyone who is being critical of Aurat March is the society. उसमें कोई मसला नहीं है. You can be critical of organizations. Organizations improve when you're critical of them. That is very important. क्योंकि I think for any organization to grow, you need to be more representative. I think what was lacking in a lot of people, जो पाकिस्तान में एक्चुअल मसले हैं, just last year यार, a mother was raped in front of her son. That's not a small thing. मोटरवे आपकी मेन हाईवे, नॉट लाइक अ फकिंग ये आप कहीं जा रहे हो जीटी रोड या कहीं से, आपका मोटरवे। और आपको पता है, पुलिस वाले जो भी थे माशाल्लाह स्टूपिड सा आदमी, वो आगे कहता है यार वो पीसीपीओ, उसको निकाला भी नहीं जी, वो लेट 12 बजे तक क्यों गई थी, राइट? ये एक मेंटालिटी है, you know, this needs legal action. I mean, the bigger problem is कि ये चीज एक्सपेडाइट की होती है कि जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, वो मिक्स सिग्नल्स देती है. Your political leadership has never openly supported a women's movement because उन्हें वोटों का मसला होता है. तो इसका मतलब है आपकी मुल्क की मेंटालिटी ये खराब है. So I would just like add on that कि the point that you made at first, मुझे लगता है जब आप as a man in this society, जब वो जाते हैं और वो देखते हैं that there are women from a different social class that they feel like are socially privileged, ठीक है, उनको लगता है कि यहाँ आई हुई हैं, तो because they have this inherent misogyny, तो वो उनकी वो ट्रिगर हो जाती है. It's like just looking at these women who they feel are from a place of social privilege, तो उनको लगता है कि यार how dare they, the audacity to come here and talk about your rights, we are socially not privileged compared to you. But the thing is that no matter what part of society you are from, as a woman, as a whole, I don't think it's a stretch to say that women have it bad. Doesn't matter what part of society you're from. यार कायदे आज़म की बहन को आपने जीतने से दिया, मदर के बातें क्या करते हैं, हमें कोई इज्जत नहीं है औरत की. अच्छा, और ये बात टॉलरेट करने को कोई विलिंग ही नहीं है कि you know maybe someone has a different opinion and let's just hear them out, you know, because they have a right, a democratic right to come here. मतलब आपके मुल्क में हर चीज के लिए सड़कें बंद हो जाती हैं, हर चीज के लिए. वहाँ को एक बंदा था बहुत, उसने बड़ा फनी था, काला कोट भी पहना हुआ था और एनक लग रहा था. अच्छा, तो वो लग रहा था लंडे का लॉयर ना आ गया. तो एनीवेज भाईजान बोला इनके लिए क्यों सड़क बंद की थी यार, भाईजान को और में रहता है यहाँ भाईजान, एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए लोग डांस कर शुरू कर हो जाती है. आई किड यू नॉट, जिना फ्लाईओवर से आए हैं ना, वहाँ एक दफा रैंडमली 2 गाड़ियों ने रोका ब्रिज के बीच में और नाचना शुरू कर दिया. रोड बंद, कुछ नहीं हो सकता था, रोड बंद. This is Pakistan. So yeah, you know, आई थिंक वही इनहेरेंट मिसोजिनी वाली बात है कि उसके वजह से इतना ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि ओके, गुस्सा आ जाता है. दे आर टॉकिंग अबाउट देयर राइट, हाउ डेयर.
उसमें आ जाता है. नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट कि कोई अपनी राइट की बात कर सकता है. And I think it's generally that's also very representative of आजकल जो trolling culture है. And maybe that steps us into थोड़ा political उसमें भी, but I feel, and I'm not कि आपकी political religion जिस मर्जी की जो, but मैंने ये feel किया है अब घरों में लड़ाइयाँ होती हैं on politics, and I think that's fucked up. Like, pardon my friend, that's fucked up because ये politician जिनके लिए आप अपने बाप बेटे लड़े हैं ना, वो politician आपने नहीं लड़ना. He doesn't give a shit. वो आपको use करेगा कि इसकी तरह मर जाए, ये मैं अपने फायदे के लिए उठा लूँ. But now ये पहले नहीं था. I'll be very honest. When I was growing up, and you might have noticed if you were growing up, discussion होती कि political awareness इतनी नहीं थी, वो बाद में हमें आई. लेकिन discussion होती, कभी लड़ाई नहीं होती थी politics पे. Like it wasn't never a thing in university. Discuss हो रही है politics, right? How that has changed. I think everyone in general is इस वक्त पाकिस्तान में everyone's very on edge with how things are, and it's really sad कि आप इस point पे पहुंचे हुए हो, because at the end of the day, irrespective of who you support, nobody is gonna care कि आप अपने घर वालों से उनके पीछे लड़ रहे हो. Like nobody actually cares about you in your individual capacity, irrespective of जो भी politician. ठीक है, तो I don't know why it's really sad to see कि लोग उस point पे पहुंचे हुए हैं कि वो mentally इतने disturb हुए हैं इस सारी situation से. तो where at the exactly कि अपने घर के अंदर ही you're willing to destroy the peace because of some politician who does not care about you at all. It's really sad. मुझे एक चीज याद आई थी from our previous conversation about औरत मार्च. So I went to औरत मार्च. I am a doctor, so like I was at work सुबह और शाम को मेरी दोबारा कॉल थी. So I went to औरत मार्च, बहुत ट्रैफिक थी. I got there eventually. फिर मैं वापस आया और वहाँ पे there was an incident that happened. There was an altercation and then it ended. But I was late to that. I went back to my call at the hospital afterwards. और जो मेरे senior थे, the doctor, so he was sharing news with me कि आज ये हुआ है. So it was like आज पता है औरतों के साथ ये हुआ है and they were attacked and this happened and that happened. And he was an educated person. He was a doctor. He was very cheerful about it. And I was like कि मुझे इस तरह बता रहा है कि कोई बहुत कमाल चीज हुई है कि वहाँ ना ऑल्टरकेशन हुई है और इनके साथ यही होना चाहिए और ये यही डिजर्व है. ये एक डॉक्टर मुझे बता रहा था. And because मैं उसका subordinate हूँ, मैं junior हूँ, तो I'm not in a position to challenge him because he's going to make my life miserable after that. But I was just sitting there and listening to him and thinking, अगर आपके doctors जो कि आपके educated class आप कहते हो कि हैं, like they belong to the educated class, तो उसके अंदर भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं. And it wasn't just him, बड़े लोग थे वहाँ पे और उन सबके सामने he's saying something like that. So it's really sad. मतलब what do you expect from everyone else? Or where do you expect tolerance to come from? He's just not willing to accept कि शायद they have a right to democratic right to come and say whatever they want to say or talk about their right. अभी आप इसी चीज पे नहीं हो तो आप क्या उससे बात करें. मैं बस वहाँ बैठा ये सोच रहा था कि यार what do I even say to this guy? Does he know that I was just there? वो बताया. I was like I'm not gonna deal with this. There's no point dealing with this. तो वही बात है कि he was going to make my life miserable were I to even have an altercation or talk to him about it. Because वही मसला है, not willing to listen. अरे ये बहुत बड़ा मसला मैंने बहुत लोगों को नोट किया है. Like I wouldn't sometimes even have conversation about any kind of work. उसको फायदा नहीं. मुझे पता है आपको कोई आ जाने के वो फिर आप उसको सपोर्ट कर रहे हो या उसको सपोर्ट कर रहे हो. Their variation until you don't agree with their point. I think ये बहुत बड़ा मसला है, right? लेकिन इसमें आप ये भी देखें कि अभी बात हुई काले कोट की, बड़ी खूबसूरत चीज हमें नजर आई. एक बहुत बड़ी एफर्ट है जो काले कोटों ने की और उन्होंने तारीख बदल के रख दी एशिया की सबसे बड़ी बार की कि उन्होंने खातून को पंजाब बार काउंसिल में इलेक्ट कर लिया. तो बाहर गजनी ने पूरी हिस्ट्री बदल के रख दी और ये सब मुमकिन हुआ उन काले कोटों की वजह से. तो ये जो खत्ता है ये बड़ा खूबसूरत खत्ता डाइवर्सिटी है, खूबसूरत डाइवर्सिटी है. यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि यार तो गलत बात है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट इज देयर. शायद ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो आगाज है वो शायद औरत मार्च की वजह से, शायद और बहुत सारी हमारी जो खवातीन, मतलब अब हम लाहौर शहर में देखें देयर वाज अ टाइम कि लाहौर शहर के अंदर खातून आपको बाइक चलाती नजर नहीं आती, लेकिन नाउ इट्स
बीइंग नॉर्मलाइज्ड। हम अक्सर देखते हैं ऊपर स्क्रीन पे, मतलब आप देखें देयर आर फीमेल राइटर्स, मतलब अदर डे मैंने वो खाना ऑर्डर किया और देयर वाज अ फीमेल राइटर और मुझे बड़ी दिली खुशी हुई कि इससे ज्यादा और वुमेन एम्पावरमेंट आपको क्या चाहिए। ये तहरीक जो उनकी है ये शुरू हो चुकी है और इट इज सो अमेजिंग कि मैं अक्सर देखता हूँ कि लाहौर के अंदर कुछ खवातीन अक्सर साइकिलें चला रही होती। इट्स सो एम्पावरिंग कि टाइम था कि उनसे ना अगर कोई खातून साइकिल लेके आ जाए तो वो उसके पीछे उनसे ना वो लड़कों की कतार लग जाती थी, लेकिन नाउ यू नो so I also feel कि ना एक और चीज I think yes sure women empowerment हुई है, कुछ स्टेप्स तो होंगे, मतलब अब 21वीं सदी आगे 2023 में एक्चुअली मतलब कुछ तो होना था, अगर if not now when, but I do feel even I think ये सारी बहुत लिमिटेड है, लाइक इवन साइकिल पे मे बी डिफेंस में चला रही होंगी और वहाँ इतना कुछ ना हो, बट I इंटरव्यूड एक साइकिल समर खान, शी इज अ साइकिलिस्ट एंड शी इज अ प्रीटी कूल पर्सन। वो इस्लामाबाद में साइकिलिंग करती है, वो भाई उसकी स्पोर्ट है, वो लिटरली शी क्लाइम्स एंड दैट्स हर पैशन। उसकी इतने सारे इंसिडेंट थे, ऑब्वियस हैरेसमेंट, ये तो साइकिल, मैं आपको बताता हूँ यार, लोग हमारी टीम में ही टेक ये उबर करीम ये सारी चीजें, इनको इनके अंदर दी अराउंड हैरेसमेंट फेस एंड इट्स होती है डेली थिंग। भाई वो ड्राइवर आगे कोई बात करने की कोशिश करेगा, रोमांटिक गाने लगा लेगा, वो स्टार्ट सेइंग इवन ये तो नॉर्मल है, दरवाजा बंद कर देगा जस्ट टू थोड़ा बहुत शेक करने के लिए, बड़ी और ये बड़ी गंदी हरकत है। यू थिंक अबाउट इट, एक लड़की बैठी है, ड्राइवर लॉक कर दो दरवाजा, पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में उस लड़की के ऊपर क्या गुजरती होगी यार। एंड दैट गर्ल प्रॉब्ली कांट इवन टेल हर हाउस, अगर उसने घर बताया उसे घर वाले अगले दिन जाने नहीं देंगे, चलो जी गेम ही कर। So a lot of women I heard from like friends and people, yaar, every day is a struggle for a lot of these women, especially जिनको इनके पास अपनी गाड़ी और ड्राइवर नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनके मसले हैं, मैं कह रहा हूँ जिनके पास ऐसा नहीं, जो अभी वो औरत जो एक तो पैसे भी कमा रही है, अपने एजुकेशन की फीस भी दे रही है, और बहुत औरतें जो अपने फैमिलीज को भी चला रही हैं, उनको उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो ना जा सकती हैं क्योंकि कल को वो निकाले भी जा सकते हैं, अगर उनको जॉब में हैरेसमेंट होगी वो जॉब से निकाल देंगे। तो हमजा बातें आपकी सारी ठीक हैं, लेकिन वी नीड मोर वुमेन लाइक समर, वी नीड मोर फीमेल्स जो कि प्रोटेक्ट कर सकें इन खातूनों को। हमें इस मुल्क में मजीद आसमा जहांगीरों की जरूरत है, और जब तक वो आगे नहीं आएंगी ये मसले खत्म नहीं होंगे। वही ना, बट अगेन या वी डू नीड दोस पीपल, बट अगेन हियर आई फील बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाए करती है हमारे लीडर्स से। या हमारे लीडर्स आर ओपनली फीमेल पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ाते हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग इवन वन, एवरीवन, ना सिर्फ इमरान खान ही, आई नो इमरान खान ने बात की, बट नॉट जस्ट इमरान खान, नवाज शरीफ ने भी की है, शहबाज शरीफ ने भी की है, इवन जरदारी ने भी की है, एंड द अमाउंट एंड दैट इज कॉमन प्रैक्टिस बाय द वे। हम में से किसी को मसला नहीं होता, उन पॉलिटिक्स बड़े बड़े लिखे लोग जाती हैं पीटीआई में भी, इन सब में they don't say a thing about it. नॉर्मलाइज है, हमारे घरों में नॉर्मलाइज है यार, लेट्स बी ऑनेस्ट। जब बड़े वगैरह मजाक करते हैं हम चुप हो जाते हैं, कहते हैं चलो यार ये अब बड़े हैं, क्या कर सकते हैं। बट या आई डोंट इवन नो, आई फील सोल्यूशन इन दी एंड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर होम। इवन अगर हम ये कन्वर्सेशन इतनी जरूरत कर लेना अपने घर में भी करने की, अपनी फैमिली में भी, मुश्किल होगा स्टार्ट में, लेकिन अगर ये भी कर लेना, आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग। No, I would just like to add to that कि I feel like as men बहुत ज़्यादा responsibility male part of society पे lie करती है, because I feel like it's unfair to ask for women to do more. They're already underprivileged. They're already going through a lot. Just existing for them in this society is a very difficult ask in itself. So to ask them to put themselves out there and do something exceptional for them to be accepted or for their rights to be, granted is too much to ask. I think as men we need to do more. Obviously, politicians का बहुत बड़ा रोल होता है, and I feel like irrespective कौन सी political party हो in Pakistan, in general gender के बारे में तो कोई awareness है ही नहीं ना हमारी political elite में. Nobody understands what it is. Nobody wants to talk about it. Yes, everyone wants to joke about it, and by joking about it, they just make it a bigger issue. They just make it worse. Instead of addressing it or respectfully talking to people, किसी का जो भी, if there's a guy you talk to them respectfully, if there's a woman you talk to them respectfully, whatever. लेकिन हमारे यहाँ उसको एक comedic चीज बना दिया है, and we think that it's hilarious, और वही बात हमारे यहाँ हर जगह normalized है,
Obviously, when you're politicians, जो भी हो, everyone does this. When they're joking about gender and they take it as something जो इसके बारे में, it's fine, we can make a joke about it. You can't expect the entire country to suddenly change their mindset overnight.